Hello guys, in this video we will learn about a smart card of payment mechanism in e-commerce. A smart card is similar to a credit card or a debit card in appearance. देखने में ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की तरह ही होता है, but it has a small microprocessor chips. जैसा कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में भी माइक्रोप्रोसेसर चिप्स लगे आईसी लगे रहते हैं embedded in it. It can store a customer's वर्क रिलेटेड एंड और पर्सनल इंफॉर्मेशन. कस्टमर्स के जो भी वर्क और उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन है इसको हम इस कार्ड पे स्टोर कर सकते हैं. स्मार्ट कार्ड्स आर आल्सो यूज्ड टू स्टोर मनी एंड अमाउंट गेट्स डिडक्टेड आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन. जो भी हमारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके रिकॉर्ड्स यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं. स्मार्ट कार्ड्स कैन ओनली बी एक्सेस्ड यूजिंग अ पिन दैट एवरी कस्टमर इज असाइन्ड विथ. स्मार्ट कार्ड्स are secure as they store information in encrypted format. Encrypted किसी भी चीज को यदि एडवांस्ड इंक्रिप्शन मेथड से हम इनक्रिप्ट कर दें तो वह डेटा हमारा सिक्योर होता है. फॉर्मेट एंड आर लेस एक्सपेंसिव, प्रोवाइड फास्टर प्रोसेसिंग. Mondex and Visa cash cards are example of smart card. A smart card is about the size of credit card made of plastic with an embedded microprocessor chip that holds important financial and personal information. The microprocessor chip is loaded with the relevant information and periodically recharged. In addition to these pieces of information, systems have been developed to store cash on the chip. The money on the card is saved in an encrypted form and is protected by a password to ensure the security of the smart card solution. To pay via smart card, it is necessary to introduce the card into a hardware terminal. The device requires a special key from the issuing bank to start a money transfer in either direction. Smart cards can be disposable or rechargeable. A popular example of disposable smart card is one issued by telephone company. After using the pre-specified amount, the card can be discarded. Smart cards have been extensively used in the telecommunications industry for years. Smart card technology can be used to hold information on healthcare, transportation, identification, retail loyalty program, and banking. Smart cards enable information for different purposes to be stored in one location. The microprocessor chip can process different types of information and therefore various industries use them in different ways. Due to their multi-purpose function, their popularity in Turkey is also on the rise. क्योंकि हम इसमें डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं इसलिए इस तरह के कार्ड को हम डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं. हम इसे अपने टिकट परचेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं या बस फेयर और अदर फेयर्स पे करने के लिए यूज कर सकते हैं, हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं. ड्यू टू डिफरेंट इंफॉर्मेशन वी कैन यूज दिस स्मार्ट कार्ड इन अ डिफरेंट वे. सो कंपनी यूज दिस कार्ड फॉर मल्टीपर्पज. स्मार्ट कार्ड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. इसके स्पेशली दो ग्रुप्स होते हैं, कॉन्टैक्ट बेस्ड एंड कॉन्टैक्टलेस. दिस टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बेस्ड इज दिस टाइप ऑफ स्मार्ट कार्ड must be inserted into a special card reader to be read and updated. जो भी इंफॉर्मेशन हमारे कार्ड के माइक्रोप्रोसेसर्स में है उसे रीड करने और उसको चेंज करने के लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जिसमें कार्ड रीडर लगा होता है. अ कॉन्टैक्ट स्मार्ट कार्ड contains a microprocessor chips that makes contact with electrical connectors to transfer the data. While contactless, this type of smart card can be read from short distance using radio frequency. इस रेडियो फ्रीक्वेंसी से हम बिना किसी कॉन्टैक्ट के उस कार्ड की इंफॉर्मेशंस को रीड कर सकते हैं. A contactless smart card also contains a microprocessor chip and an antenna that allows data to be
transmitted to a special card reader without any physical contact. इसके अंदर एक एंटीना भी होता है जिस एंटीना के थ्रू हम अपने डेटा को विदाउट एनी वायर और contact we can transfer the information or data of the card to the other device. This type of smart card is useful for people who are moving in vehicles or on foot. They are used extensively in Europe countries for collecting payment for highway tolls, train fares, parking, bus fares, and admission fees to movies, theaters, plays, and so forth. Smart cards can accommodate a variety of applications that allow the customer to make purchases from a credit account, debit account, or stored value on the card. These cards can have multiple applications operating at the same time. The customer, for example, could have a frequent flyer program working on the same card as the customer's debit or credit account. This enables the customer to earn points in his or her favorite program. Several computer manufacturers, that is Compaq or other manufacturers, are developing keyboards that include smart card slots that can be read like बैंक क्रेडिट कार्ड्स. बहुत से ऐसे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं जो हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर में भी इस तरह के स्मार्ट कार्ड के रीड और राइट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. A smart card can be programmed for different applications. स्मार्ट कार्ड पर कंप्यूटर और लैपटॉप की तरह हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं. Some cards contain programming and data to support multiple applications, and some can update it with new applications after they are issued. IBM, Microsoft, Schlumberger, and Bull are among the major players in smart card development and utilization. This smart card has many advantages. First, the capacity offered by the onboard microprocessor and data capacity for highly protected ऑफलाइन प्रोग्रेशन. इसे हम ऑफलाइन में भी यूज कर सकते हैं. Adhering to global standards, making certain numerous vendor sources and competitive cost. Established and proven track record in real world applications. Sustainability and prolonging the expected lifetime. इसे हम लोग काफी समय के लिए यूज भी कर सकते हैं. Cheap operating systems that uphold numerous applications. Protected independent data storage on one solo card. Larger money, reduced fraud, high levels of security, reliability, user comfort. Specific standards ISO. ISO stands for International Standard Organizations, जो ये डिसाइड करता है कि किसी भी डिवाइस की क्या स्टैंडर्ड होगी ताकि उसको हम ग्लोबली यूज कर सकें. सो specific standards ISO 7810, 7811, 9992, 10536. ये सब डिफरेंट स्टैंडर्ड सिक्योरिटी और अदर पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते. इसकी एक लिंक भी दी हुई है जहां से इसके बारे में डिटेल्स देख सकते हैं. ISO 7810 में क्या होता है. Ensuring economic operations 100% effective theft proof. अदर कार्ड्स में फ्रॉड हो सकते हैं, यहाँ पर 100% थेफ्ट प्रूफ है. एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ओवर कैश पेमेंट. ईज ऑफ यूज विदाउट द नीड फॉर कनेक्शंस ऑनलाइन और वाया टेलीफोन. फॉलिंग कॉस्ट फॉर ऑपरेटर्स एंड यूजर्स. प्राइवेसी, रिप्रेजेंट लिक्विडिटी, ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, अपर management information security. Through the internet, smart card users can buy and pay for computer network. Multi-service smart cards. ये सब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिटेल्स में यदि हार्डवेयर और अदर इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं इस लिंक को यूज कर सकते हैं. और भी अदर लिंक्स आपको मिलेंगे. यहाँ पर हमने एक लिंक दिया है. द disadvantages of smart cards are the lack of universal standards for their design and utilization. अभी स्मार्ट कार्ड में जनरली इसको हम लोकल पर्पस के लिए यूज करते हैं जनरली, लेकिन कुछ कार्ड्स हम इंटरनेशनली भी यूज करते हैं. इंटरनेशनल लेवल पे इस कार्ड का अभी मैक्सिमम यूज नहीं है ड्यू टू सम
स्टैंडर्ड लाइकनेस जो ऊपर अभी हमने ISO का बताया, वहां पे अभी भी रिसर्च हो रहे हैं। यदि ये सक्सेस हो गया तो इन फ्यूचर हम इस स्मार्ट कार्ड को लोकली, नेशनली और इंटरनेशनली भी यूज कर सकते। ऑन द अदर हैंड, स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशंस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ दीज डिसएडवांटेजेस शॉर्टली। जैसे ही ये सब प्रॉब्लम और कमी दूर होगी, हम इस स्मार्ट कार्ड को अदर नेशनल और इंटरनेशनल पर्पस के लिए यूज कर सकते। टाइप्स ऑफ स्मार्ट कार्ड्स, there are different types of smart cards. First is called contact smart cards. These cards require physical contact with a card reader for communication. The embedded chip has electrical contacts that connect the card reader terminals. Contact smart cards are commonly used for secure access control, identification, and payment application. While contactless smart cards use radio frequency identification and in short RFID और near field communication और NFC. इस रेडियो फ्रीक्वेंसी और NFC के हेल्प से हम विदाउट कॉन्टैक्ट अपने इंफॉर्मेशंस के एक्सचेंज कर सकते हैं. सो दीज टू टेक्नोलॉजी to communicate wirelessly with card readers. They do not require physical contact and are commonly used for public transportation, access control systems, and contactless payment. Dual interface स्मार्ट कार्ड, कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्टलेस. इस तरह के कार्ड में कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्टलेस दोनों इस इंटरफेस अवेलेबल होते हैं सिंगल कार्ड पे. दिस अलाउज यूजर्स टू लिवरेज the benefits of both contact and contactless technologies, providing flexibility in various applications. जिसमें ये दोनों फैसिलिटी है, उनमें दोनों तरह की बेनिफिट्स मिलते हैं. कुछ हमारे स्मार्ट कार्ड मेमोरी के लिए होते हैं, जिसे हम मेमोरी कार्ड्स कहते हैं. मेमोरी कार्ड्स ऑल्सो नोन एज चिप कार्ड्स और चिप मेमोरी कार्ड्स हैव एन एम्बेडेड मेमोरी चिप बट लैक अ माइक्रो प्रोसेसर. मेमोरी कार्ड तो है लेकिन माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, इसलिए इस तरह के कार्ड में हम प्रोसेसिंग नहीं कर सकते. दीज कार्ड्स आर टिपिकली यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा. इस तरह के मेमोरी कार्ड्स को हम सिर्फ स्टोर, कोई इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए यूज कर सकते हैं, सच एज इलेक्ट्रॉनिक कैश और सिक्योर आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन और समटाइम्स द हेल्थ ऑफ पेशेंट. Next card, microprocessor cards. Microprocessor cards have a microprocessor on the embedded chip, enabling them to perform complex processing tasks. मेमोरी कार्ड्स में केवल मेमोरी होते हैं, प्रोसेसर नहीं होते, जिस वजह से इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं हो सकती. बट इन माइक्रो प्रोसेसर कार्ड्स मेमोरी के साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर्स भी होते हैं, जहाँ पे हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं. और ड्यू टू प्रोसेसिंग फैसिलिटी वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ कार्ड्स in a different applications. They are more versatile than memory cards and can support various applications, including secure financial transactions, digital signatures, and authentication. Financial transactions में इस प्रोसेसिंग माइक्रो प्रोसेसर कार्ड को यूज कर सकते हैं. डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटली यदि साइन करना चाहते हैं, ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, तो उस केस में भी हम इस डिजिटल सिग्नेचर की प्रोसेसिंग इसे कर सकते हैं. ऑथेंटिकेशन की भी फैसिलिटी हम इस कार्ड से यूज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट कार्ड, पेमेंट कार्ड्स. स्मार्ट कार्ड्स आर वाइडली यूज्ड एज क्रेडिट and debit cards with embedded chips that securely store payment information. These cards provide enhanced security compared to traditional magnetic stripe cards, as the chip generates unique transaction data for each use, making it harder for fraudster to duplicate. इस पेमेंट कार्ड्स जिसमें कि एम्बेडेड चिप्स लगे होते हैं, इसको हम अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में भी एज ए पेमेंट कार्ड यूज कर सकते हैं, जिसकी डेटा को चुरा पाना आसान नहीं होता. आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स. स्मार्ट कार्ड्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस in various sectors, including government IDs, employee badges, and access control systems. The chip on the card can store personal information, biometric data, and digital certificates, enabling secure authentication and verification processes.
बहुत से स्कूल कॉलेजेस में हम जो अपने आई कार्ड रखते हैं या गवर्नमेंट में आई कार्ड होता है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं, जिसके माइक्रोचिप्स पर उस एम्प्लॉयज का, उस स्टूडेंट का पूरा इंफॉर्मेशन होता है। ये कॉन्टैक्टलेस भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट बेस्ड भी हो सकता है। कॉन्टैक्टलेस है जैसे ही वो यूजर और एम्प्लॉयज उस मशीन के नज़दीक जाएंगे, उसकी सारे इंफॉर्मेशंस वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस तरह के कार्ड को हम आइडेंटिफिकेशन के लिए, आई कार्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, या एम्प्लॉयज के बैचेज और एक्सेस कंट्रोल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, जावा कार्ड्स। जावा कार्ड्स are a type of microprocessor card that support the Java programming language. जब हम Java programming language का काम इसमें कर सकते हैं, so they are programmable and allow for the development of custom applications on the card. हम अपने कार्ड पर कस्टम एप्लीकेशंस तैयार कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। Java cards are commonly used in applications requiring dynamic and flexible functionality. Flexible और डायनेमिक फंक्शनलिटी वाले एप्लीकेशंस को डेवलप करना हो, तो वैसे केस में हम जावा कार्ड्स को यूज कर सकते हैं, जिसमें जावा प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी होती है या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारा सिम कार्ड हो सकता है, जिसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड्स, और इस कार्ड्स को हम अपने मोबाइल फोन में यूज करते हैं, और इसके यूज हम सभी जान रहे हैं। जो भी हमारे पास मोबाइल है उसमें जो कार्ड लगा हुआ है, दैट इज नोन एज ए सिम कार्ड्स। और इस सिम कार्ड्स आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्मार्ट कार्ड used in mobile phones. They store subscriber informations like contacts and authentication keys, enabling users to connect to a mobile network and make calls. इन सबों के सारे इंफॉर्मेशंस, कॉन्टैक्ट्स, डेटा और अदर डेटा हमारे इस मोबाइल फोन के सिम कार्ड पे स्टोर हो। सिम कार्ड्स कैन बी आइदर कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्टलेस। इस तरह के मोबाइल फोन्स में हमारा जो सिम कार्ड है वो कॉन्टैक्ट बेस्ड भी हो सकता है, कॉन्टैक्टलेस भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी यूज। आपके मोबाइल में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्टलेस हो सकता है। हेल्थ कार्ड्स। स्मार्ट हेल्थ कार्ड्स आर cards store and manage individual health related information such as medical history, prescriptions and insurance details. These cards enhance the efficiency and security of healthcare services. बहुत बार ऐसे होते हैं जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी जो डेटा होती है वो काफ़ी दिनों से यदि बीमार है, तो उनकी सारी इंफॉर्मेशन हम इस तरह के हेल्थ कार्ड्स में रखते हैं, ताकि हम या किसी डॉक्टर्स को कभी भी, कोई भी डॉक्टर यदि चेंज भी होते हैं तो उसकी फुल इंफॉर्मेशन हम ले पाए। इलेक्ट्रॉनिक passports, e-passports contain an embedded chip that stores biometric information including facial features and fingerprints. This enhances the security of passports and facilitates automated identity verification at border crossing. इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड स्मार्ट कार्ड से यदि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा सारा इंफॉर्मेशन, जैसे ही हम उस लोकेशन पे जाते हैं, हमारी सारी इंफॉर्मेशंस वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है और वेरिफिकेशंस करना हमारा आसान हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कार्ड्स, बहुत से ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है जो फेयर और टिकट्स के लिए स्मार्ट कार्ड इशू करते हैं, और इसको यदि हम यूज करते हैं तो हमें कैश मनी की रखने की जरूरत नहीं है। मेनी पब्लिक transportation systems use smart cards as fare cards or electronic tickets. Passengers can load value onto the card and use it to pay for rides by tapping it on a card reader. Or lastly, banking and payment cards. Smart cards are widely used in the financial sector for debit cards, credit cards and other payment applications, जिससे हम लोग परिचित हैं। These cards often have एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉड। 2015 के बाद हमारे जितने भी एटीएम और डेबिट कार्ड्स थे उसमें भी हमें चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर्स लगाने की इंफॉर्मेशंस जारी किए गए थे हमारे कंट्री के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। और अब 2018 के बाद से जितने भी कार्ड्स हैं उसमें वो माइक्रो प्रोसेसर और चिप्स वगैरह लगे होते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस। सो ऑल अबाउट द स्मार्ट कार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।